So what we discussed in last lecture, anybody? What we discussed in our last lecture, any idea? Sir, may I? Yes, you can. Sir, yeah, last lecture we discussed about differential equation, general definitions, then order and degree, how to find out in any general differential equation, and some examples. Okay, very good. So in last lecture, we have started our unit number 1, first order, first degree ordinary differential equation. In that unit, we have discussed about the differential equation, definition of differential equation. Then we go for the two types of differential equation, ordinary differential equation and partial differential equation. Then we go for the order and degree of any differential equation, how to find the order and how to find the degree of the differential equation, given differential equation. Then we go for the real world problem, that means how to convert a real world problem into the differential equation by using the formation. ओके तो उसमें क्या करते थे, जितने भी ऑर्डिनरी मीन्स सॉरी जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स है उसको रिमूव करके हम उसको क्या लेके आते थे, डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आते थे. देन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फोर एग्जांपल. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, so we continue with that. So yes, okay, is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Oh, sir. okay, so we first differential equation, ordinary differential equation, partial order degree, then mathematical modeling of real world problem by using the formation. We discussed one population of community, then family of lines. Okay, then we discussed these two examples. Okay, from the differential equation satisfied by y is equal to a e raised to x plus b e raised to 3x, where a and b are arbitrary constants, and form the differential equation satisfied by y is equal to a e raised to minus 2x plus b e raised to minus x, where a and b are arbitrary constant. I think we have completed up to here. Yes or no? Yes, sir. Okay. Then have you tried for example number 3? Oh, sorry, this not this one. This one, yes. Sorry. Yes, these two examples we have completed. Yes, sir. Have you tried for example number 3? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. What is the Yes, answer? sir. What is the answer of this? Y double dash Y plus double y Double equals dash to plus 0. y is equal differential to plus 0. y equals to 0. Yes, very good. Okay, those who have not done, please look at here. So this is your example number 3. Form the differential equation satisfy y is equal to a sin x plus b cos x, where a and b are arbitrary constants. Okay, so y is equal to a sin x plus b cos x. So differential equation, so differentiating above with respect to x. So we have dy by dx is equal to a cos x minus b sin x. That is equation number 1. Again differentiating with respect to x. So we have d square y by dx square is equal to minus a sin x minus b cos x. Minus will be outside. So a sin x plus b cos x. Okay. So this will be the y. So if you replace y here, so d square y by dx square is equal to minus y. That is equation number 2. So from equation number 2, we get d square y by dx square plus y equal to 0. So this is the required differential equation. So is there any doubt? No, sir. Okay. If you have no doubt, then we go for next. Okay. So what is the next part? So you can see in our unit, next part is our 1.2 is about the concept of general and particular solution. So we discussed today about the concepts of general and particular solution, then initial value problems, then existence and uniqueness of solutions by illustration, and then we discussed first solution of first order and first degree differential equation by using the separable variable method in today's session. Okay, so first we go for the solution. Any idea about the solution? Anybody? किसी को पता है कि solution किसको बोलते हैं? Anybody? Sir, can I? So the set of values of variable that satisfy the given equation. Sorry, can you repeat it?
The set of values of the variable that satisfy the given equation. No. Yes. Any other? Any other? Whatever you speak, it is the solution of the system of equation. Okay. Your answer is related to the solution of system of equation. But now we are going for the differential equation. Okay. तो differential equation का solution क्या हो सकता है? Anybody? Yes. कोई बोल रहा था ना? May I? बोलो. What is your answer? सर सेम ही था. सेम ही था. ओके, वेरी गुड. ओके, अब जो आपने बताया कि वो एक सेट में अगर उसकी वैल्यू रख देते हो तो आपका सॉल्यूशन होगा, यही बताया ना आपने? यस सर, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज जो सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन. यस यस, वेरी गुड. तो आपने दो चीज़ तो अंदर बोल ही दिया कि एक सेटिस्फाई करेगा, ओके, और दूसरा आपने बोला कि वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? रिलेशन होगा. तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम है. तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? यस और नो? Yes, sir. ओके. देखो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन यही होगा, ओके, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो सॉल्यूशन मीन्स क्या है? तो वो रिलेशन है. ये रिलेशन है कि नहीं? एक रिलेशन है ना ये. यस सर. Okay, so solution of the differential equation is the relation between dependent and independent variables without the differential terms. मीन्स इसमें कहीं पर भी differential terms नहीं होनी चाहिए, derivative terms नहीं होनी चाहिए, और ऐसा relation dependent and independent variable के बीच में है, then that relation is known as the solution. So now understand? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेशन देखो. द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ फ्री ऑफ डेरिवेटिव्स. मैंने बोला कि उसमें डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए ऑफ एनी ऑर्डर एंड विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए. जैसे आपने बोला था कि सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो भी वो रिलेशन मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सेम कंडीशन इज हियर विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. सो नाउ एनी कन्फ्यूजन अबाउट द सॉल्यूशन? Sir, can you repeat it, please? Okay, the solution of a differential equation is nothing but the relation between the independent variable and dependent variable without derivative terms and satisfying the differential equation. Now is it okay? Yes, sir. Okay. Okay, now in differential equation we have two types of solution. First one is the general solution and second one is the particular solution. Okay, now how we can bifurcate these two? It is very simple. So y is equal to mx plus c अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा. क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है. मीन्स अगर आप c की कोई वैल्यू फिक्स नहीं करते हो तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा. उसका दूसरा नेम है कंप्लीट सॉल्यूशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स अगर आपको कोई कंडीशन दिया है एंड इफ़ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आर्बिटरी कांस्टेंट, मीन्स मुझे 2 मिला है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 जो लिखेंगे दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं उसका भी. सो द सॉल्यूशन इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन इफ इट कंटेन्स वन और मोर आर्बिटरी कांस्टेंट. मीन्स उसमें क्या होना चाहिए? एक और एक से ज़्यादा आर्बिटरी कांस्टेंट होने चाहिए. अगर फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे. वो भी नीचे कंडीशन लिखा ही हुआ है, वो भी हम देखेंगे.
So the general solution is also known as the complete solution. It is also known as the complete solution. अब ये जो है वो कंडीशन है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, the number of arbitrary constants in a general solution is equal to the order of the differential equation. मीन्स नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो ऑर्डर के साथ रिलेट करे तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन दैट सॉल्यूशन? 5. 5. ओके, मीन्स अगर 10 ऑर्डर का है तो 10 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए इन जनरल सॉल्यूशन. ओके, सो एनी क्वेश्चन अबाउट द जनरल सॉल्यूशन? Anybody? I am expecting from all the students, please. Student, any question? No, sir. No, sir. Okay, then we go for the particular solution. Okay, so a particular solution of a differential equation is a solution obtained from the general solution. Means वो general solution जो हमको मिला है उसमें से ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. मीन्स इफ यू असाइन वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन दैट जनरल सॉल्यूशन will be converted into the particular solution. So are you understand? Yes, sir. ओके, तो मैंने जैसे बताया ऐसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो मेरा जनरल हो जाएगा. y इज इक्वल एम एक्स प्लस 2 है तो पर्टिकुलर. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. सो इज दिस solution, is this relation is the particular relation or general relation? General. Yes, this is the general relation. Okay, that means general solution. And whenever I write down y is equal to 2 sin x plus 3 cos x, then that will be the particular solution. Okay, okay. Now can we say that the particular solution has infinite many solutions? Yes. Yes, sir. Yes. Is it true? Is it true? तो इस ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन? नो स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हमने फिक्स वैल्यू कर दी है तो ये हमको यूनिक सॉल्यूशन देगा. ये दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन. इसको आपने यूनिक बना दिया है. बट इफ यू सी हियर you cannot fix the value of a and b, then that will be the infinite many solution. Understand student? Yes, sir. ओके, तो जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन हमको दे रहा है इसलिए उसको हम यूनिक बोलेंगे. लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपको एक से ज़्यादा सॉल्यूशन डिफाइन करके दे रहा है तो वो बहुत सारे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है. तो इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन द 1.2? एनीबडी? No, sir. हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. Hello, sir. Yes, yes, yes. I infinite and a unique partition. Yes, I said. ओके, इनफाइनाइट एंड यूनिक में मैंने क्या बताया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आप फाइंड कर रहे हो वो आपको एक ही सॉल्यूशन दे रहा है इसलिए उसको हम यूनिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे? यूनिक. बट अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उसमें तो हमने कुछ फिक्स किया नहीं. आप कोई बोलेगा कि a मुझे 3 लेना है, b मुझे 10 लेना है. कोई दूसरा बंदा होगा वो बोलेगा कि a मुझे 1 लेना है एंड b मुझे 11 लेना है. तो वी कैन टेक. ओके, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिव्स यू अ यूनिक सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड? Okay. Okay, okay, very good. Now how many students raise their hand? Okay, 24, only 24, 26, 27, okay, 28. So what about Subham, Jay? Yes, Subham raised his hand. Jay, Hetvi, Siddharth, Maurya,
Pujan, Priyans and Sahil. Is there any doubt? Are you there? Jai, Hetvi, Siddharth, Maurya, Pujan, Sahil, are you there? Okay, not responding, not a problem. Okay, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना एवरीबडी, मैं आपको याद करवा दूँ, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ कि हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया ना हमने, इससे अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, सो थोड़ा रेगुलरली आप लेक्चर अटेंड करना, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे. लास्ट मोमेंट पे सब कुछ रिफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1.3. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो इसका मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो पर भी आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू पे जो प्रॉब्लम डिफाइन करके दिया है, इट इज़ नोन एज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड एवरीबडी? यस सर. ओके, तो फॉर एग्जांपल हम अगर RLC सर्किट की बात करें, सो di/dt प्लस R/L इंटू आई इज इक्वल टू, मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E ले लेता हूँ. ओके, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर मैं फर्स्ट इनिशियल कंडीशन डाल दूँ, सॉरी नॉट y, I. ओके, कौन सी इनिशियल कंडीशन होता है उसके पास? तो जब t 0 है तब करंट 0 है. दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है. हम स्विच ऑन नहीं करते हैं तो करंट क्या होगा? 0 होगा ना. Yes, sir. Okay, so initial value problem means differential equation together with the initial condition is known as the initial value problem. Understand everybody? Sir, repeat. Okay, so initial value problem is the problem with the differential equation and the initial condition. Okay, मीन्स Yes sir. कोई कंडीशन के साथ दिया है आपको, तो आपको समझना है कि दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल कंडीशन होगा. सो इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज कॉची प्रॉब्लम इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा टूगेदर विथ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मीन्स उसके साथ दूसरा क्या होगा कि स्पेसिफिक वैल्यूज होगा सॉल्यूशन का, तब उसको आप इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं. अब द इनिशियल कंडीशन मीन्स वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स इनिशियल कंडीशन जो है वो क्या होगा कि आपको कोई डोमेन के एक पॉइंट पे ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स एक पॉइंट पे आपको डिफाइन करके दिया होगा एक कंडीशन, दैट इज द इनिशियल कंडीशन. अब इनिशियल कंडीशन का यूज़ कहाँ करेंगे? तो इनिशियल कंडीशन इज यूज टू डिराइव पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. मीन्स जो ये है आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, उससे आपको क्या मिलेगा? जो भी सॉल्यूशन है उसमें c की वैल्यू आपको डिफाइन करके ये कंडीशन देगा. मीन्स c क्या हो रहा है. ओके, सो दिस विल बी द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. Understand everybody? Any question? Okay. Hello? Any question, student? No, sir. Okay, then we go for the next example. Okay? Sir. Yes, Sir, yes. one doubt. Yes, yes. सर ये लाइन लिखी है, द इनिशियल कंडीशन मींस वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब सर डोमेन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? डोमेन ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स कि कोई एक पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं, उसका देखो इंटरप्रेट करो. वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन मीन्स जो सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट पे डिफाइन करके दिया है, और वो दोनों का रिलेशन किसके ऊपर होगा? सॉल्यूशन के ऊपर. देखो, द इनिशियल कंडीशन मीन्स वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स कोई सॉल्यूशन का वो वैल्यू है कहाँ पे? एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन. ओके, लेकिन ये दोनों का जो कंबाइन होगा वो अनदर एक सॉल्यूशन देगा कि नहीं?
नहीं समझे? नो सर। ओके चलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था हमारे पास। ओके, सॉल्यूशन था ना ये? यस सर। ओके, अब मैं कोई कंडीशन उसमें ले लेता हूँ कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैंने ये कंडीशन डाल दिया। तब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि ये सॉल्यूशन है, उसका कोई एक पॉइंट के लिए मुझे वैल्यू मिल रहा है। देखो, सॉल्यूशन यस एट गिवन पॉइंट। ओके, दैट मीन्स y इज इक्वल टू, y में अब 0 रखो, x की जगह पे 0, तो c हुआ, तो c इज इक्वल टू 0। अब ये c इज इक्वल टू 0 में किस में सब्सटीट्यूट करूँगा? तो मेरे ओरिजिनल सॉल्यूशन में। यस सर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स हुआ। तो यहाँ पे 2 बार सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। देखो आप, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, उससे हमने निकाला और फिर उसको सॉल्यूशन में डाला, तो इसलिए यहाँ पे दिखाएं द इनिशियल कंडीशन मीन्स वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? ओके सर। यस, मतलब सर टेस्ट केस बोल सकते हैं ना, टेस्ट करने के लिए। टेस्ट नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड करना, बस इतना समझ लो, है ना? ओके सर। ओके ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? एनीबडी? नो? सर एग्जाम्पल से समझाओ ना। हाँ यस, वही है नेक्स्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू। तो इतना दिया होता तो मैं सिर्फ उसको क्या बोलता था? डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन भी है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, इसका शॉर्ट फॉर्म है IVP, और वो कोशी ने सजेस्ट किया है। ओके, तो इसको मैं IVP बोल सकता हूँ कि नहीं? ये पूरा टुगेदर फर्स्ट स्टेप पता चल गया सबको? यस सर। यस सर। यस अब सर। इस यस सर। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैंने सॉल्व किया, जो आगे वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कंसीडर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस सी इज टू माइनस एक्स, इसका सॉल्यूशन है। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल या पर्टिकुलर? जनरल। जनरल। जनरल सॉल्यूशन। जनरल, वेरी गुड, जनरल सॉल्यूशन है। अब मुझे जो कंडीशन दिया है उसको पहले मैं इंटरप्रेट करूँगा, तो ये कंडीशन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो आपको देख लो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखो, जो ब्रैकेट में दिया है इट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स। तो इसका मीनिंग, कंडीशन का मीनिंग ऐसा होता है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू 1। यस और नो? यस सर। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यू मैं जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करूँगा। तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू, तो y की जगह पे मुझे 1 रखना है, तो 1 इज इक्वल टू x, x में 0 माइनस 1 प्लस c ई रेस टू माइनस एक्स, दैट मीन्स ई रेस टू 0। सो 1 प्लस 1 इक्वल टू c, ई रेस टू 0 मीन्स 1 हो गया, सो c इज इक्वल टू 2। ओके, यस और नो? यस सर। तो जो ये कंडीशन जो दिया था उसका हमने कैसे यूज़ किया? तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, अब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिला है वो मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करूँगा, दैट इज़ माय फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन IVP। तो इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स। सो व्हाट इज दिस सॉल्यूशन, जनरल है या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर। Particular. Particular. That means we get the particular solution of the given initial value problem. तो initial value problem जो है वो always आपको क्या देगा? Particular solution, because it will be help to find the value of the constant. Okay, इसीलिए वो हमको particular solution देगा. Now is it clear everybody? यस सर। Yes. What about others? यस सर। Okay. Yes, Yes, sir, it's clear. Yes, sir. Okay. Now एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई बोल रहा था कुछ? ओके, चलो नेक्स्ट चले 1.4 पे। सो 1.4 इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, नॉट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज, और यू कैन नॉट अप्लाई एनीवेयर।
ये यूज होता है हर एक में, लेकिन वो आप सिर्फ एक श्योरिटी दे सकते हो कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के लिए. सो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके ओके, चल. अब ये जो है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस है, वो आईवीपी के लिए पिकार्ड्स थ्योरम ने बताया था. तो पिकार्ड्स थ्योरम को स्टेट करने के लिए लिपनिस कंडीशन यूज होता है, इसलिए पहले आपको लिपनिस कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है, देन वी गो फॉर द पिकार्ड्स थ्योरम. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सो लिपनिस कंडीशन क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं. कि सपोज एफ इज डिफाइंड इन अ डोमेन डी, मीन्स कोई फंक्शन आपको दिया है डोमेन डी में, और जो प्लेन लिया है, जैसे हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ऐसे यहाँ पे टी एक्स प्लेन लिया है. ओके, इफ देर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के, मीन्स अगर ऐसा कोई के मिलता है सच दैट फॉर एवरी टी ऑफ x1 एंड टी ऑफ x2, हमने किस में वेरिएशन डाला, देखो सेकंड पोजीशन पे वेरिएशन है, मीन्स x1 एंड x2 यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है इन D, सच दैट, मीन्स अगर आपको ऐसा कोई k मिलता है जो ये सेटिस्फाई करे ये रिलेशन को, ये इनइक्वालिटी को, तो मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ टी x1 माइनस टी ऑफ x2 लेस और इक्वल टू k टाइम्स x1 माइनस x2 होता है, then f is said to satisfy Leibniz condition with respect to सेकंड कंपोनेंट इन डी. ये सेकंड कंपोनेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने जो हरकत किया वो सेकंड प्लेस पे है, इसलिए उसको सेकंड कंपोनेंट लिखा गया है. एंड द सेट ऑफ ऑल लीबनिज फंक्शंस, मीन्स अगर ऐसे जितने भी फंक्शन मिलेंगे वो सभी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है लिब डी. और टू जो है वो सेकंड में हमने रिप्लेसमेंट किया है, इसलिए टू लिखेंगे, वन में करेंगे तो वन लिखेंगे. सो सेकंड कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय लिब टू डी. So is there any doubt in Leibniz condition? Anybody? No, sir. Okay. सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये कंडीशन है जिसमें आप k फाइंड कर सकते हो, एंड k शुड बी सेटिस्फाई बाय दिस रिलेशन विद द फंक्शन. ओके, देन उसको हम Leibniz कंडीशन सेटिस्फाई बाय f बोलेंगे, और इससे सारे फंक्शन इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. नाउ our important is Picard's theorem. Okay, so let I be an interval in R, means I मैंने interval लिया, for example AB लिया. Okay, तो AB be an interval in R, and f from AB to R, okay, tends to R, be a continuous function satisfying Leibniz condition. मीन्स अगर ये फंक्शन जो है वो Leibniz कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोनेंट, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि हमको ऐसा k मिलेगा सच दैट f ऑफ x y2 माइनस f ऑफ x y1 लेस और इक्वल टू k y2 माइनस y1 होगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू i. तो ये अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है Leibniz condition को, then it gives us the surety of the unique solution. Then there is a unique solution y on I such that y dash x is equal to f of x, y of x, and y of x0 is equal to 0. That means if you write like this, dy by dx is equal to f of x, y of x, and इनिशियल पॉइंट पे मीन्स x0 पे वो y0 है. सो ये हुआ हमारा IVP. यस और नो? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिकार्ड्स थ्योरम जो IVP हमने लिखा है ना, उसका हमको श्योरिटी दे रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है IVP, उसका आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा अगर ये फंक्शन Leibniz कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो. सो इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No? Okay, very good. So this is about the existence and uniqueness. Yes, सर yes. पिकार्ड पासून Sorry? पिकार्ड हाँ, पिकार्ड्स तो समझाया मैंने. पासून समझाओ ना. Okay, okay. Means Picard's theorem says that if you have the differential equation with the initial condition, and if the given function satisfies the Leibniz condition, then you can say that that differential equation or that system has the unique solution on that interval. And understand now?
या फिर से रिपीट करूँ? नो सर। ओके, देखो इसमें सिंपल वही है कि अगर आपके पास IVP है, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कंडीशन है, और ये फंक्शन जो है वो लीबनिज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन ही होगा. दैट्स ऑल. गॉट इट? ओके। ओके ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट. इतने में ख़त्म हो गया? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरी फाइल ओपन हो गई. यस, ओके. नेक्स्ट जो है वो लीबनिज़ कंडीशन से आगे बढ़ेंगे हम. यस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. ओके, सो हाउ टू फाइंड. यस यस बेटा, यस. सर हमने वो आईवीपी में जो सम सॉल्व किया ना, हाँ उसमें मतलब कंडीशन दी हुई थी कि ये जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू x-1 वाला, पर अगर वो कंडीशन मतलब वाला इक्वेशन ना दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है? ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है, ये फाइंड आउट करना है जो रिलेशन है वो, और उसके लिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5 मेथड्स. वो तो समझाने के लिए सिर्फ था. ओके, ये रिलेशन तो हम निकालेंगे. सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल फाइंड आउट इट. ओके ओके सर. okay, so now we go for the next part of our unit. It is the solution of first order first degree differential equations. Okay, so there are 5 methods to find out the solution of the first order first degree differential equation. So number 1 is the variable separable method. Number 2 is the linear differential equation or Leibniz differential equation. Number 3 is the Bernoulli's differential equation. Number 4 method is the exact differential equation, and number 5 is the non-exact differential equation. So how we can find the first order first degree differential equation? By using the 5 different methods. Okay, everybody understand? Yes, sir. So this is Yes, our sir. Yes, this sir. is our unit number 1. Unit number 1 में हमको इतना पढ़ना है. ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. उसका दूसरा नेम है, लीबनिज़ ने प्रपोज किया था, लीबनिज़ ने फाइंड किया था वो, इसलिए उसका नेम से भी आप बोल सकते हो. बर्नौली ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, तो उसके नेम से बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. नंबर 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर 5 नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो देयर आर 5 मेथड्स to find out the solution of the first order first degree ordinary differential equation. So is there any question regarding this? No, No, sir. Oh, Okay. sir. So first today we are going to discuss about the variable separable method. Okay, it is very easy. Okay, तो इसका नेम है, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? इक्वेशन में से वेरिएबल्स है. Yes, very good. That means वेरिएबल्स को सेपरेट करो. ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड मीन्स आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसको यहाँ पे dx, यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड dy, तो यहाँ पे dx है तो सारे किसके फंक्शन होने चाहिए? x के. यहाँ पे dy है तो सारे किसके फंक्शन होने चाहिए? y के. मीन्स अगर आप इस तरीके से सेपरेट करके x को सेपरेट कर सकते हो, y को सेपरेट कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, Yes, और sir. उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, सिंपली इंटीग्रेशन बोथ साइड. ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी ऑफ वाई डी वाई, और यहाँ पे प्लस सी रख देंगे. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी मिलेगा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद. सो दिस इज अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल मेथड. क्लियर एवरीबडी? Sorry. Yes, sir. Clear? Okay. So the general form of this type of differential equation is mx dx plus ny dy equal to 0. इसको अगर आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, दैट मीन्स dx के आगे सहारा है x के
dy के आगे सारे y को लेके आ जाओ इक्वल टू 0. The solution of variable separable differential equation can be derived by taking integration on both sides. That means by integration of mx dx plus integration of ny dy equal to c, where c is arbitrary constant. Means उसका सीधा इंटीग्रेशन ले लो और जो भी आंसर आएगा that is the solution of the given differential equation by using variable separable method. Understand everybody? Yes, Yes, sir. sir. Okay. यस सर. चलो Yes, sir. ये एग्जांपल देखते हैं, लेकिन मेरी मेथड से मैं इस तरीके से करता हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे कि दोनों को मैं राइट एंड लेफ्ट ले लेता हूँ और उसके बाद इंटीग्रेशन करता हूँ. यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है, सीधा किया है, इससे ये अच्छा रहता है. ओके चलो देखो यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू 2x cos y dx माइनस e रेज टू x sin y dy इक्वल टू 0. अब सबसे पहले तो ये मेथड कब कर सकते हैं उसका मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि अगर जितने भी फंक्शन हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन उसका एडिशन दिया है दो वेरिएबल का साथ में या फिर सब्सट्रैक्शन दिया है तो यू कैन नॉट सेपरेट इट. कर सकते हैं सेपरेट x माइनस वाई को मैं सेपरेट कर सकता हूँ x एंड y में? No, sir. नो सर. ओके तो इसीलिए उसको हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम इजीली कर सकते हैं. ओके सो हियर e raised to 2x cos y dx minus e raised to x sin y dy is equal to 0. That is given. Okay. Now I make dx left hand side and dy right hand side. So dx वाला मैंने left hand side रखा है, dy वाला पूरा right hand side मैंने ले लिया. अब we can collect all the terms together with the x and all the terms together with the y dy. Okay, so e raised to 2x यहाँ से e raised to x को मैंने मूव कर दिया तो डिवाइड बाई e raised to x हो गया dx इज इक्वल टू यहाँ पे sin y था cos y को यहाँ पे मूव कर दिया तो डिवाइड बाई cos y dy हो गया. अब e raised to 2x अपॉन e raised to x को मैं सॉल्व करूँगा तो आई हैव e raised to x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन cos y क्या हो जाएगा मेरा 10y dy. नाउ we can observe here both the side we have the separate variables है ना, दोनों साइड पे हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया ना. yes or no? Yes, sir. Yes, यस sir. सर. After completing this step you can find out the integration for that. So integrating both sides, so integration of e raised to x dx is equal to integration of 10y dy plus c. ओके तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस गिव्स यू e raised to x. द इंटीग्रेशन ऑफ 10y क्या होगा log sec y. एवरीबॉडी गॉट इट? ये मिलेगा ना? Yes, sir. ओके सो एक ही बंदे ने बताया, बाकी सब भूल गए इंटीग्रेशन की फॉर्मूला? ऐसा याद है. याद है ना? यस सर. यस ओके लॉग ऑफ सेक ऑफ वाई प्लस सी. ओके तो यहाँ पे इसका लॉग हो गया. अब क्या करेंगे हम ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखा, लॉग सेक वाई को मूव कर दिया सो ई रेस टू एक्स माइनस लॉग सेक वाई इक्वल टू सी. सो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इज देयर एनी डाउट एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? सर. No, sir. No, sir. No, sir. ओके No, sir. नो सर. okay then we go for the next. okay यस प्रियंश आपने रेंज हैंड रेज किया है तो एनी प्रॉब्लम बेटा? प्रियंश एनी क्वेश्चन? ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं. हाँ ओके देन सेकंड एग्जांपल हमारे लिस्ट में है. लिस्ट कहाँ है? 1 मिनट. यस लिस्ट में. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2x minus 1 y plus 1 given that y of 0 is equal to 0. तो जैसे कंडीशन साथ में आता है और वो इनिशियल कंडीशन है इसलिए उसको क्या बोल देंगे हम? IVP बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यू कैन सी हियर आई ऑलरेडी सॉल्व दिस.
Okay, solve the differential equation dy by dx is equal to 2x minus 1 y plus 1 with the condition y of 0 is equal to 0. तो मैं पहले इसको फोकस करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, देन वी थिंक अबाउट द कंडीशन. ओके, सो पहले इसको सॉल्व करेंगे. सो dy by dx इज इक्वल टू 2x minus 1 y plus 1. यहाँ पे x and y को आप सेपरेट कर सकते हैं इजीली, दैट्स वाई वी आर गोइंग विद द वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो डी वाई बाई वाई प्लस 1 कर दिया, 2x माइनस 1 डी एक्स को यहाँ से मूव कर दिया. ओके, सो वी हैव 2x माइनस 1 डी एक्स. अब दोनों साइड पे डी वाई एंड यहाँ पे डी एक्स है और सारे एक्स एंड वाई वाले हमने सेपरेट कर दिए हैं, इसलिए हम इंटीग्रेशन करेंगे. सो इंटीग्रेट बोथ साइड. So therefore integration of dy by y plus 1 equal to integration 2x minus 1 dx plus c. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log of y plus 1. अब इसमें मैंने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होता है. मीन्स अगर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर एग्जिस्ट है यू कैन सिंपली राइट डाउन द लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. एंड दूसरी जो फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो एफ एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स is equal to f n plus 1 x divided by n plus 1. याद है या भूल गए? ये दोनों फॉर्मूला का मैक्सिमम यूज होगा. ओके, सो यहाँ पे log y प्लस 1 हो गया, क्योंकि y प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन आप सोचेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 प्लस 0 होगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे है, इसलिए log y प्लस 1. अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस 1 का x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x करना है इसलिए, एंड प्लस सी. ओके, अब यहाँ पे 2 कैंसल आउट, सो वी हैव log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. ओके, एंड नाउ वी गो फॉर द कंडीशन. ओके, इतना करने के बाद हम कंडीशन के बारे में सोचेंगे. सो हियर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जो अंदर जो ब्रैकेट में है इट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 log ऑफ 0 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0, x का 0 और यहाँ पे c हो जाएगा. दैट मीन्स log 1 हो गया, log 1 मीन्स 0, सो c इज इक्वल टू 0 मिलेगा. ओके, नाउ substitute these values of c in the expression 1 in the equation 1, we get the required solution. So the required solution is log of y plus 1 equal to x square minus x. So is it clear everybody? Yes sir. Yes sir. Any doubt, any question? जनरल सॉल्यूशन के बाद पर फिर एक बार रिपीट करो. हाँ, ओके, जनरल सॉल्यूशन मुझे मिल गया. ओके, उसके बाद मैं कंडीशन जो दिया है उसके ऊपर फोकस करूँगा. तो पहले उसको इंटरप्रेट करो कि ये कंडीशन क्या बोल रहा है. तो ये कंडीशन ऐसा बता रहा है कि जब x इज इक्वल टू 0 है तब y 0. तो नाउ सिंपली सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन 1. तो हम इसमें रखेंगे तो log ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी. तो यहाँ पे log 1 मेरा 0 हो जाएगा. ओके, एंड c मेरा 0 हो जाएगा. सो c इज इक्वल टू 0. तो अब c इज इक्वल टू 0 जो मुझे मिला है वो मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा. दैट मीन्स log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0. ओके, नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर. No, sir. लेकिन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन प्लस सी हियर. अगर ये सी ही यहाँ पे नहीं आया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, क्योंकि आप वहाँ पे पैनिक बन जाएंगे कि ये सी नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ. ओके, सो यहाँ पे वो डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी. ओके, और वो भी हम कैसे करते हैं वो भी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन मैं बता देता हूँ. तो हम आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता था तो उसके बाद आप सी रखते थे. यस और नो? Yes sir. तो Yes, sir. ये सी को मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे माइनस सी में रख सकता हूँ कि नहीं? वो तो सिर्फ क्या करते थे, बैलेंसिंग के लिए ही रखते थे ना. तो इधर लिखो या इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, तो ये No, sir. माइनस साइन को मैंने फिर सी में ले लिया तो उसको प्लस करके लिखा हुआ है. अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is about the our example number 4.
ओके, अब ये जो है वो तो लीनियर का है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ है। ओके, तो हियर देखो, चलो सॉल्यूशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू y cot x गिवन दैट y ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो दिया है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो आई एम सॉल्विंग dy by dx इज इक्वल टू y cot x। सो dy by y हो जाएगा, cot x हो जाएगा, dx हो जाएगा। नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन dy by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx प्लस, यस यहाँ पे c आएगा, पहले आएगा कि नहीं c, है ना। ये लॉग के बारे में बाद में सोचते हैं, यहाँ पे सी आएगा कि नहीं एवरीबॉडी। Yes. Yes, sir. अब इसको मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स log y इज इक्वल टू log sin x होगा प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैं c की जगह पे log c लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन log में है, तो वी कैन राइट log c, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे आपको आगे भी फिर करेक्शन कर देना है, आप वहाँ पे सी नहीं लिख सकते, सीधा आप log c लिख दो। गॉट इट एवरीबॉडी। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, अब log ऑफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम की अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो log ऑफ c इंटू साइन एक्स होगा। ओके, अब नाउ इफ यू रिमूव लॉगरिथम, सो वी हैव y इज इक्वल टू c इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये मेरा हो गया जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें मैं c की जगह पे फाइंड करना पड़ेगा मुझे वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। सो y ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं इंटरप्रेट करूँ तो क्या होगा, जब x इज इक्वल टू पाई बाई टू है तब y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू c इंटू साइन पाई बाई टू, मैंने इसमें सब्सटीट्यूट किया, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो 1 इज इक्वल टू c इंटू साइन पाई बाई टू, सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितना होता है, 1. 1। तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया, सो आई गॉट c इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1 अगर मैं ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें रिप्लेस कर दूंगा, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू साइन x। सो इज देयर एनी डाउट एनीबडी। No, sir. No, ओके, sir. No, sir. लेकिन अभी भी अगर कोई मुझे बोले कि सर मुझे यहाँ पे c ही लिखना है, log c नहीं लिखना है, तो पर भी वो c लिख सकते हैं। तो व्हाट वी हैव, देखो तो हमारे पास क्या आएगा, log y इज इक्वल टू log sin x प्लस c, यस और नो, ये मिलेगा कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होगा log ऑफ y माइनस log ऑफ sin x प्लस c। ओके, अब इसको थोड़ा, सॉरी प्लस सी नहीं, इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू सी आएगा। सो इक्वल टू सी। ओके, नाउ इफ यू सॉल्व दिस देन you will get log of y upon sin x is equal to c, yes or no। Yes. Yes, sir. And if you apply exponential both sides, so y upon sin x is equal to e raised to c, is it true। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पे अगर आप y एंड x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन साइन पाई बाई टू हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 ई रेस टू सी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ई रेस टू सी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ई रेस टू सी इज इक्वल टू 1 मीन्स सी को क्या बनना पड़ेगा कंपलसरी, 0. 0। ओके, नाउ सी इज इक्वल टू 0, आप इसमें रिप्लेस करो या फिर इसमें रिप्लेस करो, then you will get your same answer, yes or no। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। No, sir. No, sir. ओके, No, sir. okay, if you have no doubt then next method is your linear differential equation। okay, so linear differential equation, so we will discuss that linear differential equation method in next class। लेकिन आप रिवाइज करके आना, आप ये पढ़ के आए हो ना 11th 12th में। Yes, sir. ओके, तो थोड़ा देख के आना। ओके, सो वी स्टॉप हियर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन। यस यस आई, यस सेल।
अपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है कोर्स में? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता है, वो हायर ऑर्डर में आएगा. अच्छा Okay. Okay. So is there any question, any doubt in today's session? Anybody? No, sir. नो सर. सर Oh, yes. ये वेरिएबल